الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز سامعین گرامی و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی لاتعداد انگنت رحمتیں اور درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، امت کے اولیاء پر اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں ہوں۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سجدے کے لائق، عبادت کے لائق وہی ذات ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج ایک انتہائی خوبصورت اور بڑا ہی مجرب، بڑا ہی آزمودہ، سریع الاثر اور بہت ہی آزمایا ہوا ایک خاص الخاص عمل مبارک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے چینل پر آپ کو علمی، روحانی معاملات میں رہنمائی کے لیے مختلف علم و معرفت سے مزین ویڈیوز ملتی رہتی ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے دینی اسلامی بہن بھائی ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اور پوری دنیا سے ہمیں ان کے خط موصول ہوتے ہیں، ای میلز کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بائی ریٹن تحریری طور پر پارسل کے ذریعے سے، ٹی سی ایس کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع سے اپنے خطوط ہمیں بھیجتے رہتے ہیں، اور اس میں ہمارے وظائف کرنے والوں کو جو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ ان کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور کسی کو کسی حوالے سے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے سے، موبائلز کے ذریعے سے، میسنجر کے ذریعے سے، ایمو کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے وہ ٹیلی فون کالز پر اپنے اپنے معاملات شیئر کرتے ہیں۔ اور کئی لوگوں نے اس کی ڈیمانڈ کی کہ ہمارے پیچھے دشمن پڑے ہوئے ہیں جو بہت سخت ہیں، بڑے ہیوی ہیں، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اور وہ لوگ ہمارے اور ہماری فیملی کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے گھر والوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور ان کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہماری زندگیوں میں انہوں نے زہر گھول دیا ہے، ہماری زندگیوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، ہمارے فائنینشلی معاملات ڈسٹرب ہو گئے، رشتوں کے معاملات ڈسٹرب ہو گئے، قسمت اور مقدر کے معاملات ڈسٹرب ہو گئے، جاب کے معاملات ڈسٹرب ہو گئے۔ ایسے ایسے معاملات بھی جن لوگوں کے پاس کارخانے تھے، فیکٹریاں تھیں، کمپنیز تھیں، ان کے اپنے آفسز تھے، لیکن وہ آج بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہونے کے ساتھ ساتھ کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ غربت کی پسماندہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر دوسروں کا برا کرنے والے، دوسروں پر جادو چلانے والے، ٹونا کرنے والے، کالا علم کرنے والے، سفلی علم کرنے والے
और शैतानी कुव्वतों के साथ दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने वाले, दूसरों की खूबसूरत जिंदगियों को बदनुमा बनाने वाले, मियाँ बीवी के दरमियान तलाकें दिलवाने वाले, बहन भाइयों में नफरतें दिलवाने वाले, खानदानों को तोड़ने वाले, बरादरियों को तोड़ने वाले, रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को जुदा जुदा कर देने वाले लोग ऐसे गलीज अमल करते हैं। सबसे पहले मैं फिर भी उनके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को हदायत नसीब फरमाए, और अगर उनके मुकद्दर में हदायत नहीं है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ वो मामला फरमाए कि वो नाकामो नामुराद हो जाएं। और अल्लाह की लाठी फिर बड़ी बेआवाज है, वो जब चलती है तो फिर कुछ नहीं छोड़ती, किसी को नहीं देखती। दुनिया जहां की सारी ताकतें एक तरफ, रब ताला की ताकत का कोई मुकाबला, कोई तमसील हो नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला एक आने वाहिद के अंदर, एक पल के अंदर, एक साथ के अंदर, एक घड़ी के अंदर वो तख्त से तख्ते पर और तख्ते से तख्त पर लाने पर कादिर है। जिंदा से मुर्दा पैदा करने पर कादिर है, मुर्दे से जिंदा पैदा करने पर कादिर है। लेकिन उसने हीले भी रखे हैं, वसीले भी रखे हैं। तो आज का ये खासुल खास अमल मुबारक जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ऐसा अमल मुबारक है, वो दुश्मन जो दुश्मन दीन दुनिया है, यानी आपकी दुनिया का भी दुश्मन है, आपके ज़ाहरी अमाल का भी दुश्मन है, और आपके दीन का भी दुश्मन है, आपके मजहब का, ईमान को नुकसान पहुंचाता है, आपके दीनी दुनियावी मामलात में दखल अंदाजी करके उन मामलात को खूबसूरती उनकी खत्म करके वो आपको बदनुमा जिंदगी की तरफ लेके जाना चाहता है। ऐसा दुश्मन, और ऐसा दुश्मन जो जानो माल है, जान का भी दुश्मन है, आपके मालो मता का दुश्मन है, आपकी रिस्क रोजी का दुश्मन है, और ऐसा दुश्मन जो इज्जत और मर्तबे का दुश्मन है, आपको इंप्रूव हुए, डिलीवर हुए देख नहीं सकता, तरक्की की राह पर आप गामजन हैं, वो आपका दुश्मन बन जाता है कि ये तरक्की क्यों कर रहे हैं। ऐसे दुश्मन की नाक रगड़वाने के लिए, ऐसे दुश्मन को नाकाम और नामुराद करने के लिए, ऐसे दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने के लिए तीरे बहदफ सरीउल असर, इतना शानदार और इतना जानदार और इतने कमालात का हामिल कुरान मजीद फुरकान हमीद का ये ऐसा अमले मुबारक है कि जो सीधा निशाने पे लगता है, और कभी भी दुश्मन की जुर्रत नहीं पड़ेगी वो आपकी तरफ आंख उठाकर देख सके। उसके इरादे मिलिया मेट हो जाएंगे, उसकी नापाक मनसूबा साजियां मिलिया मेट हो जाएंगी, उसकी साजिशें दम तोड़ जाएंगी, और उसके खतरनाक जो अज़ाइम हैं वो इतनी जल्दी वो खत्म हो जाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि मैंने अमल तो छोटा सा किया है पर इतनी ताकत का मुझे अंदाजा नहीं था। यकीन जानिए कि ये ऐसा अमले मुबारक है जो आसानी के साथ आपको बताया जा रहा है। बस आपने इस वीडियो को मुकम्मल तवज्जो के साथ और मुकम्मल ध्यान के साथ सुनना है, इसलिए इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आपने छोड़ना नहीं है, उसको स्किप नहीं करना। अव्वल ता आखिर तक आपने मुकम्मल वीडियो को देखना है ताकि आपको कोई भी बात अधूरी महसूस ना हो, कोई भी बात, कोई लफ्ज, कोई बात मिस ना हो जाए इस वीडियो से। तो मोहतरम नाजरीन कराम, आइए इस अमले मुबारक की तरफ बढ़ते हैं। यह अमल इतना मुअस्सर तरीन है, आजमूदा और मुजर्रब है कि उन दीनी इस्लामी बहनों और भाइयों के लिए, उन दीनी इस्लामी बहनों और भाइयों के लिए, बेटियों के लिए, और उन मजबूर और हाजतमंद लोगों के लिए, दोस्तों बुजुर्गों के लिए जो जिंदगी और मालो जान के दुश्मनों के हाथों बहुत ही मजबूर और लाचार हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए ये अमल बहुत शानदार और बड़े कमालात का हामिल है। ये अमले मुबारक आपने करना है, कोई इस पर आपका पैसा खर्च नहीं होना, कोई इस पर आपकी दौलत खर्च नहीं होगी, कोई इस पर आपका ज्यादा टाइम खर्च नहीं होगा। सिर्फ 7 मरतबा चलते फिरते, उठते बैठते
कोई जगह का तयन नहीं करना, कोई मुसल्ला नहीं बिछाना, कोई जाए नमाज पर आपने विराजमान नहीं होना, कोई टाइम की नहीं है, पाबंदी नहीं है कि आपने इस टाइम पर इस जगह पर बैठकर एक ही जगह पर एक ही वक्त में पढ़ना है। नहीं, आप इसको बावुजू हालत में चलते फिरते उठते बैठते पढ़ सकते हैं। ये इतने कमालात वाला वजीफा है, आप करेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इतने कमालात इस वजीफा मुबारक के अंदर हैं। अगरचे वजीफा मुबारक अमले मुबारक छोटा सा है, लेकिन उन परेशान लोगों के लिए जो दुश्मनों के हाथों मजबूर हैं, परेशान जिंदगी गुजार रहे हैं और उनकी जिंदगी का हर वक्त लम्हा हर लम्हा वो ऐसे है दुश्मनी की आग में जल रहे हैं। मैं उन दुखी बहन भाइयों के लिए जिनके दुश्मन बड़े जालिम, सफाक और बहुत ही बर्बरियत रखने वाले हैं, बहुत बदमाशियां करने वाले दुश्मन हैं और उनकी लगाई हुई आग में वो अपनी जिंदगी की जो शबो रोज हैं वो जलते हुए गुजार रहे हैं, उन लोगों के लिए ये अमले मुबारक बहुत शानदार है। ये खुशहाल जिंदगी की तरफ आपको लेके आएगा और खुशहाली की जमानत है। इस अमल को करने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला की खासुल खास रहमतों का नुज़ूल होता है, रहमतों की बरसात होती है और दुश्मनों के जुल्म तशद्दुद का खौफ ये अमल करने वालों के दिल से खुद ब खुद निकल जाता है, क्योंकि ये अमल करने वाले अल्लाह वहदहू ला शरीक के हिफ्ज़ो अमान में आ जाते हैं। गोया के इस अमल को करने से हर इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हिफाजती हिसार में महसूर हो जाता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके इर्द गिर्द इस तरह का पैरा लग जाता है गैबी ताकतों का कि वो ताकतें नजर तो नहीं आती, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके दुश्मन आंख उठाकर भी उसकी तरफ देख नहीं सकता। बड़ी से बड़ी दुनिया की आफत बला भी उस पर असर नहीं कर सकती, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांग रहा होता है कि या अल्लाह मेरे दुश्मनों के दिल में तो अपना तसर्रुफ फरमा और उनकी शरारतों से हमें महफूज फरमा। बड़े ही खुशनसीब हैं वो लोग जो कुरान और हदीस की तरफ रजू करते हैं, जिक्र अज़कार की तरफ रजू करते हैं, तस्बीह व तहलील की तरफ रजू करते हैं, जो अमाले सालिहा तिलावत कुरान करीम और सोमो सलात की पाबंदी करके, जिक्र अज़कार करके, तस्बीह व तहलील करके, अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करके और हाजात व मनाजात, दम और दुआ कुरान करीम की आयात बय्यनात के जरिए से और विरदो वज़ाइफ के जरिए से और अल्लाह वालों की दुआओं के जरिए से, सदकातो खैरात के जरिए से और अपने अतियात के जरिए से अपने खालिक व मालिक की बारगाह में दुश्मनाने दीन व दुनिया से निजात हासिल करने की अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ दुआएं मांगते रहते हैं। इंतहाई खुश नसीब वो लोग हैं जो किसी काले इल्म वाले के पास नहीं जाते, किसी जादू टोने वाले के पास नहीं जाते, किसी बेशरा और किसी बेनमाजी के पास नहीं जाते, किसी ढंगोसलेबाज के पास नहीं जाते, किसी ठेले वाले के पास नहीं जाते, बल्कि अल्लाह वालों की तरफ जाते हैं। याद रखिएगा, मैं इस मौके पर एक बात आपको करता चलूं कि अगर कुरान और हदीस के अज़कार करने से और अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम की आयात बय्यनात के पढ़ने से, नमाज और जिक्र अज़कार के करने से, दुआएं करने से फिर भी आपका काम रुक गया है ना या नहीं हुआ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जितने अज़कार किए हैं, जितनी नमाजें पढ़ी हैं, जितनी अल्लाह अल्लाह की है, इसके करने का सवाब तो आपको मिल रहा है ना। रजू तो अल्लाह की तरफ है ना। तो जब आप ये इस रजू के अंदर आप ये समझ लें कि कोई कमी रह गई है, कोई कुताही रह गई है, कोई मुझसे गफलत हो गई है जिसकी वजह से मेरा चिल्ला, मेरी दुआ, मेरा वजीफा, मेरी तस्बीह, मेरे जिक्र अज़कार, मेरे सदका व खैरात ये काबिल कबूल नहीं हुए, या इनका मुझे फौरी तौर पर जो नतीजा था, जो समरात थे, जो इसकी बरकत थी, वो फौरी तौर पे मुझे नहीं मिली, तो आप इस बात से परेशान मत होएं, बल्कि ये सारा कुछ आपका जमा हो गया है। बकौल हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हदीस नबविया के रोशनी में
मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन लोगों की दुआएं मकबूल नहीं होती, वो दुआएं करते हैं लेकिन मकबूल नहीं होती, या विरद वज़ाइफ करते हैं कोई लोग, मकबूल नहीं हुए वो दुआएं, तो उन लोगों को परेशान नहीं होना, बल्कि उनकी दुआएं अल्लाह के यहाँ जमा हो गई हैं। और ये हो ही नहीं सकता कि बंदा मोमिन दुआ मांगे और वो रायगा चली जाए, वो जाया हो जाए। इसकी सनद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम ने अता फरमाई है कि क़यामत वाला दिन होगा, जो दुआएं जिंदगी में कबूल नहीं हुई उस इंसान की, वो क़यामत वाले दिन उसकी दुआओं का बदला अल्लाह पाक उसको अता फरमाएंगे। क्योंकि रब ताला का कुरान मजीद में फरमाने आली शान है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक राई के दाने के बराबर भी कोई भलाई करे तो रब ताला उसको जाया नहीं फरमाते। तो हम बात कर रहे थे कि दुश्मनाने दीनों दुनिया, ऐसे लोग जो हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। उनसे निजात के लिए जो लोग अल्लाह के यहां दुआएं मांगते हैं वो बड़े खुश नसीब हैं। और याद रखें, आप जब भी अमल मुबारक इस तरीके से करेंगे, जो तरीका इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो फिर आप सर की आंखों से खुद मुशाहिदा करेंगे कि दुश्मन को कैसे मुंह की खानी पड़ रही है। आपका दुश्मन नाकाम और नामुराद हो जाएगा, बल्कि नीस्तो नाबूद हो जाएगा। बस आपने ये अमल इस तरीके के मुताबिक करना है जो तरीका वीडियो में आपको बताया जा रहा है। आप इसको ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। इस तरीके को मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर अमल का तरीका कार बताने से पहले, इस अमल का तरीका कार बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब फरमा लें और इसके साथ लगे हुए बेल के बटन को जरूर प्रेस करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और इन वीडियोस को फॉरवर्ड करें। जो जो वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप अपने बहन भाइयों में इसको जरूर शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में, अपने हल्का अहबाब में जरूर इसको शेयर करें, क्योंकि कर भला हो भला होता है भले का भला। ये अमल आपने जरूर करना है ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बाआसानी मिल सके। आप हमारे चैनल को लाजमन फॉलो करें ताकि इसकी इल्मी और रूहानी वज़ाइफ की जो वीडियोस हैं वो आपको हर वक्त बाआसानी मिल सकें। तो आइए नाज़रीन किराम, अमले मुबारक की तरकीब और तरतीब की जानिब बढ़ते हैं। ये अमले मुबारक नाज़रीन किराम आपने इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि अपनी आंखें बंद कर लेनी है और ये अल्फाज 7 मरतबा कुरान मजीद फुरकान हमीद के ये आपने पढ़कर अपने दुश्मन को अपने तसव्वुर में लाकर, अपने ख्यालों में लाकर, अपने ज़हन में लाकर 7 मरतबा इस आयत मुबारका को आपने पढ़ना है। चलते फिरते पढ़ सकते हैं, आंखें बंद करके पढ़ना है। अगर आप कमरे के अंदर टहल रहे हैं, चहलकदमी कमरे के अंदर कर रहे हैं, सेन के अंदर कर रहे हैं, तो आप आंखों को बंद भी कर सकते हैं। और अगर आप बाहर हैं तो आप आंखें खुली रखें, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि आप आंखें बंद करें। आंखें बंद करके तसव्वुर ताकि पूरा जम जाए, तसव्वुर में अपने दुश्मन को लाकर आपने 7 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़कर फूंक मारनी है। और ये फूंक मारना आपका काम है, अल्लाह तबारक व तआला इसमें तासीर पैदा फरमाएंगे। आपने रब से ये दुआ करनी, या अल्लाह पढ़ना मेरा काम है, तेरे कलाम को इसमें तासीर पैदा करना तेरा काम है। तो आप देखेंगे जिस यकीन के साथ, जिस यकीन कामिल के साथ आप इस अमल को करेंगे, यकीनी तौर पर दुश्मन फौरन नाकामो नामुराद हो जाएगा, उसके सारे हमले नीस्तो नाबूद हो जाएंगे, उसकी सारी चालें, उसकी साजिशें और उसके जो आपके साथ उसकी धोखेबाजी है, मकर है, उसका वो चलेगा नहीं, वो जाया हो जाएगा। और अल्लाह पाक आपको कामयाब कामरान फरमाएंगे। कामयाबियां, कामरानियां आपके कदम चूमेंगी। मैं फिर बता रहा हूं कि तासीर पैदा करना अल्लाह का काम है, अल्लाह के कलाम को पढ़ना अल्लाह के बंदे का काम है। तो अल्लाह के बंदे हैं आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। आप जिस वक्त यकीन कामिल के साथ पढ़ेंगे, देखिए एक वाकया मैं यहां पर एक गोश गुजार कर दूं आपके
کہ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा सियासत्ता शरीफ के अंदर अहादीस की किताबों के अंदर ये वाक़या सराहतन मिलता है और मुख्तलिफ तुरक के साथ इसको बयान किया गया है, मुख्तलिफ तरीकों के साथ इसको बयान किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह पर स्टे किया, क़याम किया, पड़ाव किया और वहाँ के लोगों को उन्होंने फरमाया कि हमें खाना खिलाएं, हमारी मेहमान नवाजी करें। तो उन लोगों ने बुखल से काम लिया और उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान अपने अपने खैमों में बैठ गए। थोड़ी देर हुई, उस बस्ती का जो रईस था, उस बस्ती का सरदार था, वहां का वडेरा था, जागीरदार था, उसको किसी चीज ने डस लिया। जब डस लिया तो उसने अपने मातहतों को और अपने हल्का अहबाब को कहा कि जल्दी करो, मेरी तो जान निकल रही है, किसी दम करने वाले को लेके आओ। अब वो लोग चले, चलते चलते अल्लाह ने उनका रुख सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की तरफ मोड़ दिया। वो लोग जब वहां आए तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से उन्होंने गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि हमारा मरीज है और उसको दम करना है, वो तकलीफ में मुब्तला है और बिस्तर पे पड़ा है, तो आप उनको दम करें। आप हमें अल्लाह वाले महसूस होते हैं, दरवेश महसूस होते हैं, आप दम करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की उस जमात में से एक सहाबी उठे, उन्होंने फरमाया दम हम करेंगे लेकिन एक रेवड़ बकरियों का लेंगे। एक रेवड़, अरब के दस्तूर के मुताबिक रेवड़ में 40 बकरियां होती हैं उस वक्त, तो 40 बकरियों के रेवड़ का उन्होंने, सरदार ने हामी भर ली, जी आप दम करें हमें, हम आपको एक रेवड़ बकरियों का देंगे। अब वो शुक्राना एक रेवड़ बकरियों का दम किया। वो एक रेवड़ यानी 40 बकरियां, कितनी 40 बकरियां लेकर वो वापस अपने खैमों में आ गए। थोड़ी देर बाद सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने इस पर तज्जिया किया और फरमाया कि भाई आपने 40 बकरियां ले ली हैं तो बहुत ज्यादा है, आप थोड़े ले लेते। उन्होंने फरमाया भाई मैंने दम किया है, मैंने वक़्त दिया है, मैंने दम किया उनको, ये मेरी मर्जी है, मैं जितने मर्जी लूं। तो उन्होंने वो 40 बकरियां ले ली। ये वाकया चलते चलते यहां तक आता है कि ये आपस में चिमगोइयां हुई और ये वाकया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में चला गया। खैर, वहां सरकार की बारगाह में जब ये वाकया पहुंचा, इस आयत मुबारका को, ये आयत मुबारका सूरह यासीन शरीफ के अंदर आपको मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। इसे आपने 7 मरतबा आंखें बंद करके, दुश्मन का तसव्वुर करके, गुस्से के साथ, या अल्लाह पाक इसके नापाक इरादों को, इसके गलीज प्रोपोगंडों को और इसकी साजिशों को, इसकी चालों को, इसके मकरों को और इसकी शरारतों को मुझसे दूर फरमा दे और मुझे इसके तमाम प्रोपोगंडे और इसके गलीज मंसूबे जो हैं, जो इसने साजिशें और चालें मेरे खिलाफ करके एक जाल बिछाया है, या मुझे जुल्म बर्बरियत का जो निशाना बना रहे हैं, जादू के जरिए से, टूनों के जरिए से, काले इल्म के जरिए से, सिफली इल्म के जरिए से और दीगर तरीकों से थ्रेड कर रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, या अल्लाह मेरे इन दुश्मनों को मुझसे दूर फरमा दे, नाकाम और नामुराद फरमा दे। और अगर वो आपके दीन का भी दुश्मन है, जान और इज्जत और माल का भी दुश्मन है, मर्तबे का भी दुश्मन है, तो फिर उसकी नाबूदी के लिए, उसकी नीस्तो नाबूदी के लिए भी आप अल्लाह से दुआ करें और तसव्वुर करके 7 मरतबा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून पढ़कर तसव्वुर में आंखें बंद करके उसकी तरफ फूंक लगा दे। 7 फूंके लगाएं। इंशाअल्लाह इस अमल को जारी रखें जब तक वो नाकाम और नामुराद होके नाक रगड़ता हुआ आपके कदमों में आके माफियां नहीं मांगता, उस वक्त तक इस अमल को जारी रखें। ये एक दिन में भी अमल हो सकता है और हफ्ते के अंदर भी हो सकता है और चंद दिन ऊपर भी लग सकते हैं। जिसने ये अमल किया, हजारों दुनिया ने, लाखों दुनिया ने, अल्लाह ने उनको कामयाब कामरान फरमाया। बस 7 मरतबा ये छोटी सी आयत मुबारका पढ़कर दुश्मन का तसव्वुर करके फूंक मारें, दुश्मन नाक रगड़ता हुआ
آپ کے قدموں میں آ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے معافی مانگے گا. اپنا خیال رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.